Hello, dear students. Very good afternoon. Good evening, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gaukar. Welcome to our class for CA Foundation Economics. Public finance, we were studying. We had started with this chapter. We are already done with the very first unit, that is fiscal function. Today, we're going to get a market failure. Okay, this chapter basically contains two parts: market failure and how does government function so that these market failures are overcome. Okay, so this is what this chapter is all about. Market failure चार reasons से होता है. Can you tell me the four reasons why market failure happens to be? Monopoly power. ठीक है, market power, that is monopoly, externalities, public goods and incomplete information. तो perfect. तो हमारे इस यूनिट का मेजर एजेंडा है कि मार्केट फेलियर होता क्या है, मार्केट फेलियर के सोर्सेस क्या है और गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इन मार्केट फेलियर्स को करेक्ट करे, सॉल्व करे. सो मार्केट इज एनवायरनमेंट वेयर बायर्स एंड sellers transact rationally. ठीक है, since the general belief is that rational individuals act to maximize the self-interest, perfectly working market system is by default efficient and will effectively allocate the resources which is scarce. Okay, a well-functioning market prices provide accurate signals to the producer and consumer, and the right quantity of whatever consumers choose to consume will produce and supplied. जितना प्रोड्यूस होगा डिमांड के हिसाब से होगा, कोई ज्यादा सप्लाई नहीं होगा, कोई कम सप्लाई नहीं होगा. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. ऐसा एक्सपेक्टेड है, ऐसा होने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. ओके, सो दिस इज ऑलवेज नॉट ट्रू. सप्लाई और डिमांड मैच नहीं करता, एंड दिस इज मार्केट फेलियर. द मार्केट फेल्स टू allocate द रिसोर्सेज efficiently and therefore market outcomes become inefficient. यानी जो भी आउटपुट है वो सब तक नहीं पहुंचता, वो एडिक्वेट नहीं होता या फिर ओवर प्रोड्यूस हो जाता है. The inefficient allocation of resources in an economy is described as market failure. The term market failure does not mean market is not working at all. No, it does not mean that. It means the market does not function the way it should. Market failure is a situation in which free markets leads to misallocation of scarce resources, in the sense that there is either overproduction or underproduction. So guys, overproduction हुआ तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, अंडर प्रोडक्शन हो गया तो डिमांड ज्यादा हो जाएगा, और हम लोग दोनों में से कुछ भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, ऐसा सिचुएशन होगा, लीडिंग टू लेस देन द optimal outcome, leading to this is misallocation of scarce resources. Types of market failure, can you tell me? Complete market failure and partial market failure. Complete market failure and partial market failure. तो guys, इसमें से wrong quantity of product at a wrong price, wrong quantity या फिर wrong price, किसमें क्या cater होगा? प्रोडक्ट अवेलेबल है, और उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट ही नहीं है, ये complete market failure. So complete market failure is missing markets and partial market failure is wrong quantity of product, और क्वांटिटी सही है लेकिन प्राइस गलत है. सर एग्जांपल ऑफ कंप्लीट नहीं बेटा आप ज्यादा उम्मीद कर रहे हो इसमें. ठीक है, दिस इज अ रिविजनरी सेशन, दिस इज नॉट अ कंसेप्ट बिल्डिंग सेशन. ठीक है, सो गाइस, कंप्लीट मार्केट फेलियर में प्योर पब्लिक गुड्स, ये प्योर पब्लिक गुड्स का एग्जांपल, ये प्योर पब्लिक गुड्स का एग्जांपल ये. ठीक है, कंप्लीट मार्केट फेलियर जहां पे ये प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है. दिस इज द केस ऑफ मिसिंग मार्केट्स एंड ऑकर्स व्हेन द मार्केट डज नॉट सप्लाई प्रोडक्ट्स एट ऑल डिस्पाइट द फैक्ट दैट सच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर वांटेड बाय द पीपल. एग्जांपल, प्योर पब्लिक गुड्स, कंप्लीट मार्केट फेलियर. देखो ना, प्योर पब्लिक गुड्स, ये जो बॉर्डर पे हमारे जवान होते हैं, ये क्या प्राइवेट एजेंसी सप्लाई कर पा रही है? बोलो. चाइनीज और पाकिस्तानी, इंडिया चाइना और इंडिया इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे जो हमारे जवान है, कई सप्लाई नहीं कर पा रहे. सो गाइस, कंप्लीट मार्केट फेलियर, उसका मार्केट ही नहीं है. प्योर पब्लिक गुड्स क्या होता है ऐसा. और पार्शियल मार्केट फेलियर व्हेन द मार्केट डज एक्चुअली फंक्शन बट इट प्रोड्यूसेस ईदर रॉन्ग क्वांटिटी और रॉन्ग प्राइस. सो गाइस, ये बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है. सीधा एक एमसीक्यू इस पे. ओके, सो द पर्टिनेंट क्वेश्चन इज व्हाई डू मार्केट्स फेल? मार्केट फेल होते क्यों है? So the four reasons are market power, externalities, public goods and incomplete information. So guys, कोई अगर मोनोपोलिस्ट है मार्केट में, कोई मार्केट पावर होल्ड करता है, कोई मोनोपोली पावर होल्ड करता है, तो वो क्या करेगा?
बनाने वाला सिर्फ एक बंदा है, तो सिंगल प्रोड्यूसर रहेगा, या फिर स्मॉल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स रहेंगे तो मोनोपोली सिचुएशन आएगा, या कार्टेलाइजेशन होगा। तो ये लोग क्या करेंगे, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्राइसिंग रखना है, वो लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो आप कंट्रोल करोगे तो आपने गड़बड़ कर दिया यहां पे। तो पहला जो फैक्टर है वो क्या है, मार्केट पावर। मार्केट पावर और मोनोपोली पावर इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू प्रॉफिटेबली रेज द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स ओवर इट्स मार्जिनल कॉस्ट। फर्म्स दैट हैव मार्केट पावर आर प्राइस मेकर्स, बराबर है। यानी किसकी प्राइस मेकर्स, यानी किसकी बात हो रही है, मार्केट चैप्टर का नॉलेज ले आओ, मार्केट चैप्टर। Monopoly. Monopoly, beautiful. Firms that have market power are price makers and therefore can charge a price and gives them positive economic profit. Excessive market power causes a single producer or small number of producers to restrict the output and charge prices higher than that would prevail under perfect competition. These profits are not achieved due to operating efficiency but due to market power and dominance. Thus, market fails to produce the right quantity of goods and services at the right price. So, पहला factor हो गया क्या, market power. तो जो मोनोपोलिस्ट होंगे तो पूरी कोशिश करेंगे कि क्या बढ़ाए, क्या बढ़ाए, बोलो मोनोपोली क्या कोशिश करेगी, प्राइस बढ़ाए, खुद का प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करें। उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना पावर, अपना डोमिनेंस यूज करेंगे मार्केट के खिलाफ। दिस इज वेयर मार्केट फेल्स टू प्रोड्यूस द राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट द राइट प्राइस। काफी बार ये लोग जानबूझ के क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट्स का शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, करेक्ट है, ताकि क्या बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए और फिर प्राइस रेज हो जाए। दूसरा फैक्टर है मार्केट पावर के बाद, दूसरा फैक्टर है एक्सटर्नलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नलिटी, साइड इफेक्ट्स। करेक्ट, एक्सटर्नलिटी का मतलब साइड इफेक्ट्स। तो साइड इफेक्ट पॉजिटिव रहता है नेगेटिव, दोनों। करेक्ट, ठीक है। सो एक्सटर्नलिटीज आल्सो रेफर टू एज स्पिल ओवर इफेक्ट्स, नेबरहुड इफेक्ट्स, थर्ड पार्टी इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स। तो एमसीक्यू बन सकता है एक्सटर्नलिटी को लेके, ठीक है। सो एज द ओरिजिनेटर ऑफ एक्सटर्नलिटी, कॉस्ट और बेनिफिट और अदर्स हु आर रिस्पांसिबल फॉर इनिशिएटिंग द इफेक्ट। तो गाइस देखते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, गवर्नमेंट की कोई एक्टिविटी जैसे सब्सिडी, क्या ये फेवर में होती है लोगों के, बोलो सब्सिडी, हाँ सर। ठीक है। सो गाइस ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। और टैक्स पॉजिटिव है नेगेटिव, टैक्स नेगेटिव, so negative externality occurs when the action of one party imposes cost on another. Positive externality occurs when the action of one party confers benefit on another. Positive externality, जैसे ये भैया वो काम कर रहे हैं कुछ कारपेंट्री का, आई गेस कारपेंट्री, यस, तो इससे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गया, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव। पॉजिटिव, अरे इतना शोर करेंगे ये लोग, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये आंटी ने खाना जला दी, किचन में आग लगा दी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो एक्सटर्नलिटी जो, ठीक है, गलत होती है, जिससे, ठीक है, सपोज अ वर्कशॉप क्रिएट्स ईयर स्प्लिटिंग नॉइस, कान फट जाता है, या फिर बेकर की स्टोर में स्मोक होता है तो उससे गड़बड़ होती है। इफ एन अकाउंटेंट इज डिस्टर्ब बाय लाउड म्यूजिक बट हैज नॉट इम्पोज्ड एनी एक्सटर्नलिटी ऑन द सिंगर्स, देन द एक्सटर्नलिटी इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। अकाउंटिंग वाज डिस्टर्ब्ड बाय लाउड म्यूजिक बट हैज नॉट इम्पोज्ड एनी एक्सटर्नलिटी ऑन द सिंगर, यानी एक अकाउंटेंट किसी को तकलीफ दे सकता है क्या, बोलो, एक सिंगर लाउड म्यूजिक बजा के किसी को तकलीफ दे सकता है, लेकिन क्या हम अकाउंटेंट हार्मलेस बंदे हैं, बोलो, नहीं दे सकते। तो दोनों पार्टी एक दूसरे को दिक्कत दे रही है तो बाय डायरेक्शनल हो जाएगा, एक ही पार्टी एक्सटर्नलिटी दे रही है तो यूनिडायरेक्शनल। तो कोई चीज आप प्रोड्यूस करते हो तभी भी एक्सटर्नलिटी होगी, कोई चीज आप कंज्यूम करते हो तभी भी एक्सटर्नलिटी होगी। तो एक्सटर्नलिटी में वी हैव नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। ये प्रोडक्शन के वक्त कोई चीज प्रोड्यूस करता है तो क्या होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का पोल्यूशन। वही कंजम्पशन के वक्त सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीते वक्त नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है, पोल्यूशन नहीं, ज्यादातर पैसिव स्मोकिंग हो जाती है बाकी लोगों को, बाकी लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सो प्रोडक्शन के वक्त आप कुछ कर रहे हो तो सबसे मेजर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ओके। और ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, लेकिन प्रोडक्शन से पॉजिटिव इश्यूज भी हो सकते हैं। A positive production externality in production that confers external benefit on others may be received in production or in consumption. Okay, yeah. So positive production यानी हम लोग
जब प्रोडक्शन फैसिलिटी में लोगों को जॉब देते हैं तो उनकी स्किल्स डेवलप हो जाती है, करेक्ट है। या फिर हम लोग प्रोडक्शन में गार्डन बना लेते हैं, तो गार्डन बनाते वक्त जो लोग बाहर के लोग गार्डन को देखते हैं तो उनको एक अच्छी फीलिंग आती है। तो गाइस ये प्रोडक्शन की पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी होती है। अब कंजम्पशन, जब हम स्मोक कर रहे हैं तो हम सिगरेट को कंज्यूम कर रहे हैं या फिर हम लोग शराब कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेस कॉजेस पैसिव स्मोकिंग टू अदर्स। काफी लोगों का हेडेक चालू हो जाता है, जैसे ही स्मोकिंग का थोड़ा सा भी धुआं उनने सूंघ लिया तो हेडेक हो जाता है। कितने लोग ऐसे हेडेक होने वाले? ऑल द नाइस पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड प्लेइंग रेडियो लाउडली obstructing one from enjoying a concert are examples of negative consumption externality affecting the and diminishing the aesthetic value of the room and playing the radio loudly, ये सारी negative consumption externality है। The act of undisciplined student talking and creating disturbance, ये भी क्या, मेरी क्लास कंज्यूम कर रहे हो लेकिन तुम बहुत बातें कर रहे हो एक दूसरे के साथ। मोक्षा और रेवती उधर से बेइंतहा बातें कर रही है, तो यार ये टीचर्स को पढ़ाने में दिक्कत देंगे, तो ये नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी है। कोविड-19 की वैक्सीन, ठीक है, तो क्या ये पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी देगी या नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी देगी? बोलो। पॉजिटिव। सर इससे इम्यूनिटी आ जाएगी, डिसीजेस नहीं होंगे, या हेल्थ क्लब आपने बनाया तो इससे बेनिफिट होगा, तो ये होता है पॉजिटिव। तो याद रखना एक्सटर्नलिटी दोनों टाइप की होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, प्रोडक्शन को लेके भी और कंजम्पशन को लेके। तो जब हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं तभी भी साइड इफेक्ट्स रहेंगे, जब हम कंज्यूम करते हैं तभी भी साइड इफेक्ट्स रहेंगे। ओके, सो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या है? प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। यानी अगर हम लोग कोई चीज में प्रोड्यूस करते हैं, कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें प्रोड्यूसर को जो कॉस्ट लगता है वो है प्राइवेट कॉस्ट, और जो सोसाइटी बेयर करती है वो क्या है? एक्सटर्नल कॉस्ट। ओके, फॉर्मूला याद रखना। देयर आर 4 मेजर रीजंस। सो ये हुआ मार्केट पावर, दूसरा एक्सटर्नलिटी, तीसरा है पब्लिक गुड। क्या है यह? क्या है यह बताए? दूरदर्शन रामायण। दूरदर्शन पे रामायण आता था, राइट। तो ये सब देख रहे हैं, पूरा गांव देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है, ठीक है, मेला लगा लगा के देख रहे हैं। ये क्या है रे? स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट। पंचायत में ये सड़क नहीं है बस, करेक्ट है। और फुलेरा गांव का ये रहा गांव दिखने वाला टंकी। तो ये जो रोड है, सही में ऐसा फुलेरा नाम का कोई गांव है यूपी में? नो, मैं यूपी से हूं सर। ठीक है। सो ये स्ट्रीट लाइट्स क्या सबके काम आने वाली है या सिर्फ मेरे काम आने वाली है? मैं कार चलाता हूं तो सिर्फ मेरे काम आएगी? बोलो। सबके काम आएगी। हमारे गांव में पानी की टंकी है, इसका फायदा किसको होगा? सिर्फ एक गांव वाले को या सबको होगा? सबको। Public goods. Paul Samuelson, who has introduced the concept of collective consumption good, is in his path-breaking 1954 paper, The Pure Theory of Public Expenditure, is usually recognized as the first economist to develop the theory of public goods. The public goods is defined as the one who all enjoy in the common, in the sense that each individual consumption of such good leads to no subtraction from any other's consumption. किसी ने अगर इसमें से इस लाइट को यूज कर लिया तो दूसरे को कम रोशनी मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्री, हमारा फोन ये पब्लिक गुड है क्या? हमारा फोन, ये मेरा फोन है, ये पब्लिक गुड है क्या? प्राइवेट गुड। It's a private good. Private good refers to those goods that yield utility to the people. Anyone who wants to consume them must purchase them. जबकि दूरदर्शन किसी को खरीदना नहीं है, सबको फ्री है, करेक्ट है। ऑन द कॉन्ट्री, स्टार, सोनी, जी टीवी, कलर्स, ये सारे प्राइवेट है पब्लिक है? प्राइवेट है, पैसे दो और लो। सो दीज आर ऑल प्योर पब्लिक गुड्स। फ्लड कंट्रोल सिस्टम, दूरदर्शन, पब्लिक वाटर सप्लाईज, वही टंकी, एंड स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स, नेशनल डिफेंस सर्विसेज। अब पब्लिक गुड्स में ऐसा है कि पब्लिक गुड्स के लिए काफी लोग टैक्स पे करते हैं, करेक्ट है। लेकिन भारत में ऐसे लोग हैं जो टैक्स पे ही नहीं करते, तो वो लोग फ्री में यूज करते गुड्स। तो इसको क्या कहते हैं? बोलो। फ्री में यूज करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? मेहनत कोई और करता है। फ्री राइडिंग। इसको फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या कहते हैं? उसको फ्री। पब्लिक गुड्स में फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, प्राइवेट गुड्स में फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। सो
देयर आर 4 मेजर रीजंस. ये हो गया मार्केट पावर. दूसरा होता है एक्सटर्नलिटी. एक्सटर्नलिटी दो समय पे होती है. कौन से प्रोडक्शन पे और प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. ज्यादा खाना हो गया. देन पब्लिक गुड्स हमने देख लिया. और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी टाइप का डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए डिसीजन लेने के लिए? कंप्लीट इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन. डिसीजन लेने के लिए हमें चाहिए इंफॉर्मेशन. और अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, कम है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो हमारे डिसीजंस भी गलत होंगे. करेक्ट है? तो complete information is an important element of competitive market. Perfect competition implies that both buyers and sellers have complete information about anything that may influence their decision making. However, this assumption is not fully satisfied in the real market because of the complexity of products and services, difficulty of getting correct information, deliberate misinformation by interested parties, and information failure results in market failure. यानी आपके पास सही इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आप डिसीजन कैसे लोगे? ठीक है. असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. asymmetric information, there is imbalance. Symmetry यानी दोनों के पास same. Asymmetric यानी imbalance. Imbalance in information between the buyer and seller. When the buyer knows more than the seller of the goods known than the buyer, this can distort the choices. For example, landlords know more about the property than the tenants. किराएदार को, मकान मालिक को प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा पता होता है किराएदार से. करेक्ट है? उस हमारे घर में भूत रहता है, ये लैंडलॉर्ड को ही पता होता है, टेनेंट को नहीं पता होता है. देन उसको बाद में पता चलता है उसके साथ जब कॉन्ज्यूरिंग होता है. देन बोरोवर नोज मोर अबाउट देयर एबिलिटी टू रीपे लोन देन द लेंडर. लेंडर तो दे देता है, अरे तू दे पैसे, हम वापस कर देंगे साहब, लेकिन वापस करेंगे नहीं करेंगे बोरोवर को ही पता होता है. अ यूज्ड कार सेलर नोज मोर अबाउट द व्हीकल क्वालिटी देन द बायर. हेल्थ इंश्योरेंस बायर नोज मोर अबाउट द स्टेट ऑफ हेल्थ देन द इंश्योरेंस कंपनी. एंड सम ट्रेडर मे possess insider information in the financial market. So basically these are situations where one party to a transaction knows a material fact then the other party does not. Material, what do you mean by the word material? Material इस वर्ड का क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट. मटेरियल यानी इंपॉर्टेंट. ये वर्ड तुम लोग बार बार पढ़ोगे सीए इंटर में, लॉ में और ऑडिट में. सीए इंटर बोल दिया मैंने. सीए इंटर में जाओगे क्या? है क्या ताकत? हाँ. नेक्स्ट लेवल पे जाओगे क्या? बोलो. यस. ऑल द बेस्ट. कीप वॉकिंग. हमारे पास कुछ समय बचा, अभी भी खींच सकते हैं हम लोग, याद रखना. This phenomena is an important source of market failure. Adverse selection and moral hazard are the two central concepts related to problem of information gaps in many markets. दो information gaps के कारण दो central concept बनते हैं, adverse selection and moral hazard. Asymmetric information generates adverse selection and affects a transaction before it occurs. Asymmetric information generates adverse selection and affects a transaction before it occurs. For example, one party to a contract or negotiation says X possesses information relevant to the contract which Y does not have. The expected value of the transaction is more accurately known to X, okay, and less known to Y because of the asymmetry. Then the party which has more information may take advantage of Y's ignorance, which could potentially make him make a wrong decision and Y will be at loss. तो ये क्या हो गया? आपका एडवर्स सिलेक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ और बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज असिमेट्रिक. यूज्ड कार मार्केट में बहुत इश्यू होता है. मुझे पता है मेरी कार की क्या हाल है. करेक्ट है? ठीक है. इन द इंश्योरेंस मार्केट, इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं. द इंश्योरेंस मार्केट द कंपनीज कुड कॉस्टलेसली आइडेंटिफाई हेल्थ रिस्क ऑफ द बायर्स देन देयर इज नो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. लेकिन हमको क्या दिक्कत है? क्या ये हम ही को सबसे ज्यादा पता होता है या किसी और को भी पता होता है? बोलो. हम ही को पता होता है. ये तो कंपनी को पता ही नहीं चलता. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, compared to insurance buyers, insurance companies knows less about the health condition and therefore unable to differentiate between high risk and low risk persons. So yeah, incomplete information के कारण एडवर्स सिलेक्शन हो सकता है. तो गाइस, कोई भी प्रोडक्ट बेचने या खरीदने से पहले जो आप करते हो दैट इज कॉल्ड एज एडवर्स सिलेक्शन. ठीक है. कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के पहले या बेचने से पहले जो भी डिसीजन आप लेते हो, लेने वाले होते हो, वो होता है आपकी सिलेक्शन. वो सिलेक्शन आपकी एडवर्स होगी क्योंकि आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है. जैसे आपने इंश्योरेंस बेच दिया उसको विदाउट नोइंग दैट द पर्सन हैज द हार्ट कंडीशन,
हेल्थ इश्यूज है, उसको हार्ट को रिलेटेड कुछ इश्यूज है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता है, तो ये आपका एडवर्स सिलेक्शन हो गया, आपने लेस प्रीमियम चार्ज किया उसको, ठीक है। वही वही decision. Thus, asymmetric information leads to elimination of high quality goods from the market. Economic agents end up either selecting substandard product or leaving the market altogether. So ये decision लेने के पहले की बारी है। Moral hazard, आपको पता है कि प्रोडक्ट, जैसे सबको ही पता है कि सिगरेट खराब है, इससे किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो इसमें असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं, सबको पता है शराब गलत है, ये असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं हुई। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में बहुत गड़बड़ होती है, लाइफ इंश्योरेंस में बहुत गड़बड़ होती है। देखते हैं इसका एग्जांपल, जस्ट अ मोमेंट। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है, आपने प्रोडक्ट बेच देने के बाद कुछ गड़बड़ होती है तो वो मॉरल हजार्ड में आएगा। सो मॉरल हजार्ड अराइजेस व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नलिटी एंड इट इज अबाउट एक्शंस मेड आफ्टर, actions made after a market making a market exchange which may have adverse impact on the less informed person. In other words, it is about opportunism characterized by an informed person taking advantage of the less informed person, ठीक है। इट अराइजेस फ्रॉम द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। सो गाइस, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से ही दो कंसेप्ट्स आए, पहला कौन सा, एडवर्स सिलेक्शन, और मॉरल हजार्ड एक्सचेंज हो जाने के बाद, ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद। It occurs when one party had the agreement knows that he had no need to bear the consequences of this bad behavior or a poor decision making and that the consequence if any would be borne by the other party। भाई अगली पार्टी का नुकसान हो जाएगा, मुझे पता है, फिर भी मैंने ये ट्रांजैक्शन किया, तो ये मॉरल हजार्ड के केस में आएगा। Therefore he engages in a risky behavior or fails to act in good faith। तुमको तो गुड फेथ पता ही होगा, क्यों लॉ वालों बोलो, गुड फेथ, Yes. है ना। So or acts in different way that he had to bear those consequences by himself। In the insurance market, moral hazard refers to a situation that increases the probability of occurrence of a loss or a larger than normal loss because of the change in the insurance policy holder's behavior after buying the policy। यानी ट्रांजैक्शन करने के बाद तुम गड़बड़ कर रहे हो तो मॉरल हजार्ड है। फॉर एग्जांपल, अ ड्राइवर हु हैज एन कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस टेंड्स टू बी लेस केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, तो गलत है। आप ये करने के बाद, इंश्योरेंस देने के बाद आप गड़बड़ कर रहे हो, आप अपना बिहेवियर उसके बाद बदल रहे हो। When someone is protected from paying full cost of their harmful action, they tend to act irresponsibly, making the harmful consequence more likely। So ये moral hazard हो जाएगा, जो कि totally गलत रहेगा। So market failure इन चार रीजन से होता है, कौन से? Market power, externalities, public goods and incomplete information। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? What is the government's role to ensure well functioning market? सो गवर्नमेंट का काम है कि सबसे पहले तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, वाटरवेज, और ये सब इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई भी है। क्या कहते हो, है क्या? रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट आपके नजदीकी शहर में, आप ही के शहर में मेट्रोज भी बना रहे हैं, ऊपर से ये लोग इंडिया को सेव भी कर रहे हैं। तो क्रिएटिंग नेसेसरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बताओ बैंक्स के लिए कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है? बैंक्स के लिए कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इंडिया में?
कम ऑन। आरबीआई, स्टॉक मार्केट के लिए सेबी और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए आईआरडीए। ओके, तो हमारे पास लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है। किसी के साथ किसी का ऐसा, ये लोगो किस चीज का है बोलो? लोगो डेटॉल। डेटॉल का Dettol. लोगो है। ये कौन सी कंपनी का लोगो है बोलो? पूमा। Puma. क्या ये डुप्लीकेट है? बोलो डुप्लीकेट है। हाँ। ये देखो, कोमा। कौन चला गया कोमा में? मिसरिप्रेजेंटेशन है ये। इसको कहते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। क्या इसके लिए कोई लॉ है इंडिया में? क्या इसके लिए कोई लॉ है? जी हाँ सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेके हमारे पास कॉपीराइट एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, ट्रेड सीक्रेट एक्ट है। तो गाइस इंडिया में लॉफुल चीजें इन प्लेस है। कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर को लूटा ना जाए इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। कंपटीशन में कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए कंपटीशन एक्ट है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना है। तो ये है ना इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। और हमने कंपटीशन और कंज्यूमर लॉज भी बनाए। तो गवर्नमेंट काम कर रही है। गवर्नमेंट की क्या इंटरवेंशन से टू करेक्ट द मार्केट फेलियर? सबसे पहला, मिनिमाइज द मार्केट पावर। मोनोपोली को अलाउ नहीं करेंगे, मोनोपोली नहीं बनने देंगे। इसके लिए कौन सा लॉ है बताओ? नो, मोनोपोली नहीं बनने देंगे, इसके लिए कौन सा लॉ है? कंपटीशन एक्ट है हमारे पास है। कंपटीशन एक्ट, मोनोपोली नहीं होने देने के लिए हमारे पास है कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट के पहले कौन सा लॉ था? एमआरटीपी एक्ट। तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, उसके बाद करेक्ट द एक्सटर्नलिटीज। कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट होता है तो इसको करेक्ट करना। मेरिट और डीमेरिट गुड्स बनाएंगे। करेक्टिंग इंफॉर्मेशन फेलियर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ा था क्या हमने पिछले यूनिट में? Yes. तो दिस इज हाउ गवर्नमेंट इंटरफियर, और ये सारी रॉन्ग डूइंग्स ये लोग कवर करता है। ठीक है, यूएस में एंटी ट्रस्ट लॉज थे, ठीक है, एंड कंपटीशन एक्ट इन यूके, तो हमने उसको सीधा सीधा कॉपी कर लिया। जो लोग एंटी कंपीटिटिव एक्शन और प्रेडेटरी प्राइसिंग जैसी एक्टिविटी को रोकते हैं। प्रेडेटरी प्राइसिंग में क्या होता है बोलो? प्रेडेटरी प्राइसिंग लेस देन कॉस्ट प्राइस। छोटे छोटे बिजनेसमैन को मिटाने के लिए कॉस्ट से कम में बेचा जाता है। ठीक है, तो दैट इज बैड। अदर मेजर्स इंक्लूड मार्केट लिबरलाइजेशन, सबको ओपन अप कर देना, एलपीजी कर देना। कंट्रोल्स ऑन मर्जर्स एंड एक्विजिशन, दो कंपनीज को एक नहीं होने देते आसानी से, अदरवाइज मोनोपोली या कार्टेलाइजेशन होता है। प्राइस कैपिंग होता है, यानी अपर लिमिट सेट करते हैं। कौन से गुड्स पे प्राइस कैपिंग की थी गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम? मास्क पे। देन प्रॉफिट और रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न, पैट्रोनेज टू कंज्यूमर्स एसोसिएशन, लॉयल्टी, टफ इन्वेस्टिगेशन, रिस्ट्रिक्शंस ऑन मोनोस्पोनी पावर ऑफ फर्म्स। मोनोस्पोनी क्या होता है? Single buyer. सिंगल सेलर इज मोनोपोली और सिंगल बायर इज मोनोप्सोनी। देन रिडक्शन इन इंपोर्ट कंट्रोल्स एंड नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये सब किया जाता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट गवर्नमेंट्स डू टू करेक्ट द मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर इनके अगेंस्ट ही ये सारे सोल्यूशन है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन में डायरेक्ट कंट्रोल्स लगाती है गवर्नमेंट। एज अ सप्लायर गुड्स ही सप्लाई कर देते हैं, मैटर खत्म। एज अ बायर और इनडायरेक्टली टैक्स लगाती है, सब्सिडीज देती है और रेगुलेट करती है मार्केट को। काफी बार गुड्स पे पहले ही बता देते हैं वो कि स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ वगैरह वगैरह। मूवीज में भी ऐसा सिंबल आ जाता है बार बार, देखा आपने? तो जो भी एक्सटर्नलिटी है उसको करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। स्मोकिंग इज बैंड इन पब्लिक प्लेसेस, और एडवर्टीजमेंट में उस पर लेबल किया जाता है। ठीक है, कुछ चीजों का सेल इंडिया में प्रोहिबिटेड है। लाइसेंसिंग और प्रोडक्शन कोटास, जैसे लीकर नहीं बिकना चाहिए ज्यादा, इसलिए लाइसेंसिंग वगैरह वगैरह उसमें यूज किया गया है। और पोल्यूशन होता है, इसके लिए हमारे पास ईपी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बना है, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हर स्टेट के पास भी अपना स्टेट बोर्ड है पोल्यूशन के लिए। राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उड़ीसा, तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सबके पास है ये। सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी खुद का है। ओके, और एक पिगोवियन टैक्स है, पिगोवियन टैक्स, यानी जो पोल्यूशन करेगा वो पे करेगा। क्या कहते हो, सही है? Yes. लेट द पोल्यूटर पे, इसको मेकिंग द पोल्यूटर पे, इसको कहते हैं पिगोवियन टैक्सेस। बिल्कुल इस पे क्वेश्चन आएगा। एसी पिगोव ने ये कंसेप्ट लाया है। जो 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 ज्यादा पोल्यूशन करेगा वो टैक्स पे करेगा ज्यादा। ठीक है, सो मार्केट अप्रोचेस, पोल्यूशन टैक्स, और दूसरा है कैप एंड ट्रेड सिस्टम। आप पोल्यूशन करो, उस पे टैक्स पे करो, सीधा सीधा मैटर। दूसरा, आपको लिमिट दी गई है,
पोल्यूशन करने की लिमिट दी गई है, अगर उतने आपने पोल्यूशन नहीं किया तो अपना बचा हुआ लिमिट आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो बोलो, सेल। सेल कर सकते हो। इसको कहते हैं कैप एंड ट्रेड। ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। क्या कहते हैं उसको, कार्बन क्रेडिट आपका उसको कहते हैं कार्बन क्रेडिट, करेक्ट। कार्बन ट्रेडेबल एमिशन परमिट्स, यानी आप एक्स्ट्रा जो आपके पास पोल्यूशन करने की रियायत बची हुई है उसको आप बेच सकते हो। ये एकदम से एक्सेप्ट नहीं होता है, बट या दैट्स देयर, ठीक है। ट्रेडेबल परमिट कहते हैं इसको। आप अपना जो एक्स्ट्रा लिमिट है पोल्यूशन करने का, अनयूज्ड लिमिट आप सेल कर सकते हो, ठीक है। So India has experimented with cap and trade in the form of perform, achieve and trade scheme and carbon tax in the form of cess on coal. तो perform, achieve and trade, कोशिश करो कम पोल्यूशन करने की, यानी परफॉर्म करो, टारगेट्स अचीव करो, और अगर तुम्हारे बच जाते हैं, एफिशिएंटली आप प्रोड्यूस करते हो बिना पोल्यूशन के, तो कार्बन क्रेडिट आप बेच दो। कुछ लोगों पे कार्बन का टैक्स ही लगा देंगे, मैटर खत्म। बट इसको गिनना इतना आसान नहीं है, इट इज डिफिकल्ट, ठीक है, पता करना। एक्सटर्नलिटी को रोकने के लिए अब सब्सिडी दे देते हैं कुछ गुड्स को, ठीक है, कुछ गुड्स को सब्सिडी दे देंगे। और काफी बार पोल्यूशन हो रहा है ना, एक काम करो, तो झाड़ लगा दो आप, अफॉरेस्टेशन कर दो आप, आपके कारण पोल्यूशन हुआ है ना, आप अफॉरेस्टेशन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाजार्डस केमिकल्स है तो उसको डायरेक्टली नदी में मत डालो, आप कहाँ करो, पहले क्या करो उसका, डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन करो, उसको ट्रीट करो, ट्रीटमेंट के बाद वो कम डेंजरस बनता है, फिर उसको नदी में डालो आप, ठीक है। और मेरिट गुड्स ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट, जैसे स्कूल्स बनाएगी, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, पानी की टंकी, वेलफेयर सर्विसेज, ये तो हमने देखा ही है, गीला सूखा, ठीक है, फायर फाइटिंग व्हीकल्स, ये सारे मेरिट गुड्स बनाती है गवर्नमेंट, तो जिससे जो भी नेगेटिव चीजें है वो खत्म हो जाए। आयुष्मान भारत की स्कीम वगैरह तो तुमने देखी होगी, गरीबों के लिए कोविड के अगेंस्ट क्या बनाया था, सबके लिए कंपलसरी वैक्सीनेशन, बच्चों को एजुकेशन मिले, इसलिए आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, बहुत कम पैसों में एजुकेशन मिल जाता है आज बच्चों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट गुड्स। तो इनको प्रमोट करना है, डीमेरिट गुड्स को क्या करना है बोलो, डिमोट। हाँ, उसको प्रमोट नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट हम लोग टैक्सेस बढ़ा देंगे, ठीक है, बैन नहीं करेंगे, बैन भी कर सकते हैं। सो डीमेरिट गुड्स जो अनडिजायरेबल गुड्स होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगा देंगे। ड्रग्स के ऊपर तो बैन ही लगा दिया है, ड्रग्स बेचने नहीं देंगे तुमको, ठीक है। सो हाउ डज गवर्नमेंट करेक्ट द मार्केट फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम डीमेरिट गुड्स, कंप्लीट बैन ऑन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, ठीक है। काफी बच्चे ये वाले लोगो वाले टी शर्ट खरीदते हैं बिना समझे कि ये है किस चीज का लोगो, तो आप यहां पे भी ये लोगो है दोस्त, ये लोगो वाली टी शर्ट नहीं खरीदना, ये ड्रग्स का सिंबल है, ठीक है, वीड का सिंबल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही बोल रहा हूं सर? सर हमको नहीं पता सर, वेरी नाइस, आपको नहीं पता तो बैन कर देते हैं ये चीज को, ठीक है। ये सिनेमा थिएटर्स में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देते हैं ना, तो इसमें एक फेमस एडवर्टीजमेंट है, देख रहे हो विनोद, हाँ, मुकेश की एड आती है कि ओरल कैंसर से मर गया वगैरह वगैरह, तो ये नेगेटिव एडवर्टीजमेंट भी करती है। दिस इज हाउ गवर्नमेंट मैनेजेस इट। शराब की तो एडवर्टीजमेंट ही नहीं करने देते, देखा तुम लोग, वो लोग एडवर्टीजमेंट म्यूजिक सीडीज वगैरह की एड देते हैं वो लोग, शराब की डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते। कुछ स्टेट्स में तो शराब बैन ही कर दिया उन्होंने, ठीक है। सोडा की ऐड देंगे, हाँ, सोडा की ऐड देते हैं, करेक्ट, या फिर मेन विल बी मेन की ऐड देते हैं, बराबर। टैक्स लगा देते हैं, बहुत हेवी टैक्स लगा देंगे, ठीक है, और महंगे टैक्स स्लैब में डाल देंगे गुड्स को, ताकि महंगा हो जाए गुड्स और खरीद ना पाए, और स्मगलिंग वगैरह को तो बैन ही कर देंगे, बिल्कुल। सो गाइस ये सारी चीजें करते हैं डीमेरिट गुड्स में। पब्लिक गुड्स के साथ बस एक ही प्रॉब्लम है कि फ्री राइडर प्रॉब्लम आ जाता है, कि जो पैसे नहीं भी भर रहा है वो भी उसको यूज करता है, बट इट्स ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्राइस इंटरवेंशन करता है, प्राइस इंटरवेंशन, ये किसानों के लिए कौन सा प्राइसिंग लाए थे बोलो, किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी लाए थे उन्होंने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कितना होना चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस? 1.5 ऑफ कॉस्ट। परफेक्ट। तो गाइस ये सारे करते हैं। और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ये चौथा पार्ट है, इससे कैसे लड़ेंगे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से? जैसे इसमें ना, जैसे हर प्रोडक्ट के पीछे इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है लिखो, बराबर है, लिखा होता है, पूरा न्यूट्रिशन का अमाउंट दो। म्यूचुअल फंड्स में बताओ लोगों को कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क,
रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, बराबर है। हर एड में आपको ये स्टेटमेंट बोलते हुए जरूर दिखेंगे लोग, करेक्ट है। सो इसको कहते हैं मैंडेटरी डिस्क्लोजर। ऐसे लड़ती है गवर्नमेंट, हर चीज को लेके गवर्नमेंट लड़ती है, ओके। और ताकि लोगों के साथ गलत ना हो, लोगों के डिसीजन गलत ना हो। पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव नॉलेज, रेगुलेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, सही एडवर्टीजमेंट करेंगे, रिस्पॉन्सिबल एडवर्टीजमेंट करेंगे, ठीक है। वो ने फेयर एंड लवली का ये आता था कि 4 हफ्तों में गोरापन, है ना, बंद कर दिया वो एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट ने। 4 हफ्तों में चमगादड़ से बड़ी बन जाओ, ठीक है। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं लोगों के साथ, ताकि लोगों को सबको, जैसे यहाँ पे इक्वालिटी और इक्विटी, कौन सा इक्वालिटी है? इधर वाला इक्वालिटी, दिस वन इज इक्वालिटी, बट इक्वालिटी से काम नहीं बनता, काफी बार आपको इक्विटी यूज करनी पड़ती है, ठीक है। ये मैच सबको इक्वल बेनिफिट्स दे रहे हैं, बट सबको फायदा नहीं हो रहा। यहाँ पे सबको इक्वल बेनिफिट्स नहीं दे रहे, लेकिन मैच सब देख पा रहे हैं। इसको कहते हैं इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको चीजों का। कुछ लोगों को जॉब रिजर्वेशन दे दो, कुछ लोगों को रैंड रिफॉर्म का फायदा दे दो, कुछ लोगों को ट्रांसफर पेमेंट दे दो। ट्रांसफर पेमेंट समझते हो? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, एग्जाम्पल हो गया उसका। तो गाइज ऐसे करते हैं। So guys, yeah, that's that about our dear chapter, dear unit, market failure और government की intervention. Shall we test your knowledge on this? Yes. First question: market failure is a situation which occurs when? It occurs when the market fails to form और दे एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अगर वो सही तरीके से एलोकेशन नहीं करते रिसोर्सेज का, तो इसको मार्केट फेलियर समझा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेलियर? The answer is B. Merit goods are not sufficiently produced and supplied. यही होता है मेजरली। Which of the following is an outcome of market power? Market power का कौन सा एग्जांपल बन रहा है? पावरफुल हो ना आप, तो प्राइस मेकर वाला है पॉइंट ये, करेक्ट। मार्केट्स डू नॉट एक्सिस्ट फॉर विच टाइप ऑफ गुड्स? ये तो इजी है। For pure public goods, for pure public goods markets do not exist. Pure public goods के लिए कोई मार्केट है ही नहीं। Pure public goods का एग्जांपल हमारे जवान बॉर्डर पे। Which of the following is the right argument for provision for public goods by the government? Markets are unlikely to produce sufficient quantity of public goods, इसलिए फिर गवर्नमेंट को ही ये काम करना पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट को ये काम करना पड़ता है। Adequate amount of pure public goods will not be provided by private market because, आराम से सोचो, पब्लिक गुड्स प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्यों नहीं बनाते? अरे फ्री राइडिंग का प्रॉब्लम है उसमें, इसलिए फ्री राइडर प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ, फ्री राइडर प्रॉब्लम आता ही क्यों है? क्यों आएगा फ्री राइडर प्रॉब्लम? फ्री राइडर प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि हम लोग इसको यूज करने से किसी को रोक नहीं सकते। द गुड्स और सर्विसेज नॉन एक्सक्लूडेबल। A chemical factory has full information regarding the risk of the product but continues to sell it. This is possible because of selling कर रहा है वो। क्यों सेलिंग कर रहा है? फ्री राइडिंग तो है ही नहीं, फ्री राइडिंग तो है ही नहीं आंसर, तो ए और सी भी आंसर नहीं है। तो बचे दो ऑप्शन, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मॉरल हैजार्ड। द करेक्ट आंसर इज, बोलो, Asymmetric. असिमेट्रिक। क्यों असिमेट्रिक, क्यों मॉरल हैजार्ड नहीं? एक को इनको पता है ना और एक को नहीं पता है, तो मॉरल हैजार्ड में भी तो पता नहीं था ना आपको। ट्रांजैक्शन, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज द जॉनर। मॉरल हैजार्ड में आफ्टर इफेक्ट्स की बात होती है ना, ये सब बिफोर द हो रहा है,
इसलिए मॉरल हजार्ड स्पेसिफिकली आंसर नहीं आएगा इसका, ठीक है। इफ एन इंडिविजुअल टेंड्स टू ड्राइव हिज कार इन डेंजरस हाई स्पीड बिकॉज ही हैज कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर, ठीक है, ले लिया इंश्योरेंस, उसको पता है पैसे मिलने वाले हैं, मॉरल तो वो हजार्ड। रैश ड्राइविंग करता है। ना 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 ना, आप इसमें ही देंगे मुझे आंसर चैट में, ताकि आंसर लीक ना हो। सो ट्रांजैक्शन होने के बाद जब आप बिहेवियर चेंज करते हो तो वो आता है मॉरल हजार्ड में, और ट्रांजैक्शन के पहले आप लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण डिसीजन लेते हो, इसको कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन, ठीक है। ये कंसेप्ट दोनों क्लियर हुए? Yes. स्मोकिंग इन पब्लिक एरिया इज अ केस ऑफ, तो इजी है एकदम। स्मोकिंग पब्लिक एरिया इज अ केस ऑफ, स्मोकिंग इज कंजम्पशन, कंजम्पशन में पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव कंजम्पशन। आराम से पढ़ लो इसको, टेक योर टाइम। Alright guys, the answer is first and third are correct. Market based approaches to control externality operate through price mechanism, yes possible है, ठीक है। and the externality are present, the welfare loss would be eliminated, no, ठीक है, नहीं, welfare loss अगर externality present है तो welfare loss होगा, eliminate कैसे होगा? The key to internalizing or externality is to ensure that those who create externalities include them while making decision। हाँ, तो आपको अगर एक्सटर्नलिटी का इंपैक्ट कंसिडर करना है तो आपको समझ लेना है कि एक्सटर्नलिटी से क्या होने वाला है। तो गाइस फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, चेक दिस आउट, चेक आउट व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स। Alright guys, the correct answer is C. Substantial negative externality are involved in consumption of merit goods. Merit goods में कहाँ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होगी? नहीं, पॉजिटिव ही होता है इसमें। तो ट्रेडेबल परमिट्स प्रोवाइड इंसेंटिव टू इनोवेट एंड रिड्यूस द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, सही है। ट्रेडेबल परमिट्स यानी क्या, क्या एग्जांपल है ट्रेडेबल परमिट्स का? कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट, ठीक है। अ सब्सिडी ऑन गुड विच इज सब्सटेंशियल पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वुड रिड्यूस इट कॉस्ट, करेक्ट है। सब्सिडी है तो फिर कॉस्ट रिडक्शन होगा, ये तो हमने देख लिया। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की होगी? मेरिट गुड्स आर लाइकली टू बी अंडर प्रोड्यूस्ड, कम प्रोड्यूस होंगे ना मेरिट गुड्स, क्योंकि अंडर प्रोड्यूस होंगे, तो अंडर प्रोड्यूस होंगे तो अंडर कंज्यूम भी होंगे, मेरिट गुड्स नहीं बनाने को देखती। Which of the following would you suggest to reduce the negative externality? तुम ही बताओ कौन सा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी? प्रोडक्शन सब्सिडी नो, एक्साइज ड्यूटी नो, पिगोवियन टैक्सेस नो, पिगोवियन हो सकता है। जो पिगोवियन टैक्स क्या होता है? व्हाट इज पिगोवियन टैक्स? मैंने बताया Polluter था, pays. पोल्यूटर पे, जो कार्बन पोल्यूशन करेगा वो पे करेगा, तो गाइज ये करेक्ट है, ठीक है। पिगोवियन टैक्सेस से रिलेटेड है, मेकिंग द पोल्यूटर पे। अब पिगोवियन सब्सिडी, अब पिगोवियन सब्सिडी cannot be present when externality is present, no ऐसा कुछ नहीं है। it is a good solution for negative externality, it is not measurable for in terms of money, it may help production to be socially optimal when the positive externalities are present, तो it will help in production to be socially optimal। जब ये टैक्स होता है, जब ये टैक्स होता है तो प्रोडक्शन सही तरीके से होता है, ठीक है, करेक्ट। if the government make it compulsory to avail insurance protection, it is because insurance is a merit good and government wants to consume it. Competition Act 2002 aims at what? To promote and sustain competition in the market.
रूल्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट लेबलिंग, ये किसके लिए है? प्रोडक्ट पे सारे लेबल्स होने चाहिए, किसके लिए है ये चीज? may help to solve the market failure due to information failure. Identify the incorrect statement. इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पूरा नॉलेज ही टेस्ट हो जाता है इसमें. Okay, guys, the production and consumption of demerit goods are likely to be less than optimal. Production और consumption, production demerit goods, कितनी cigarettes बनती है, कितनी शराब बिकती है, गलत है ये statement, बहुत बनाया जाता है demerit good. The incentive to let other people pay for a good or service, the benefit of which is enjoyed by an individual. The incentive to let other people pay for the goods, कोई और पे करेगा और हम उसको यूज करेंगे. कौन सा प्रॉब्लम है ये? केस ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम. गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट हेल्प करती है लोगों को, कुछ पैसा गवर्नमेंट देती है. जैसे सोलर लगाने में 50,000, 60,000, 68,000, 78,000 कुछ रुपीस गवर्नमेंट देती है लोगों को, तो ये सब्सिडी हो गई. तो इट्स अ मार्केट बेस्ड पॉलिसी, करेक्ट. इट इन्वॉल्व्स पेइंग, गवर्नमेंट पेइंग द पार्ट ऑफ द कॉस्ट एंड इट जनरली प्रोवाइडेड फॉर मेरिट गुड्स. सोलर इसका एग्जांपल बन जाएगा. ऑल ऑफ द सोलर पैनल्स. द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स आर likely to be more than optimal in free markets. करेक्ट है स्टेटमेंट. लेस देन ऑप्टिमल अभी पढ़ा है, रॉन्ग है. होता है, बहुत प्रोड्यूस और बहुत कंज्यूम होता है. शराब और सिगरेट के एग्जांपल ले लो. likely to be subjected to price intervention by the government. yes, ठीक है, लोग गवर्नमेंट इस पे टैक्स ज्यादा लगा देती है. ANCR करेक्ट. द आर्ग्यूमेंट फॉर एजुकेशन सब्सिडी इज बेस्ड ऑन, द आर्ग्यूमेंट फॉर एजुकेशन सब्सिडी इज बेस्ड ऑन, एजुकेशन सब्सिडी is based on B and C. Education is costly, इसलिए सब्सिडी दो. And the argument for education subsidy is based on education is costly, education का costly है. The ground that education is a merit good, correct. And education creates positive externality, इसलिए इसमें सब्सिडी दो. B or C is the correct answer. Read the following penultimate question of the day. Statement 1 देख लेते हैं. Social cost or total cost incurred by the society when the goods is consumed or produced. Do you agree? Social cost का फॉर्मूला क्या था बताओ? Social cost का फॉर्मूला प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट. है ना? बिल्कुल, आप ये फॉर्मूला तो बिल्कुल लिख लो. प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, ये फॉर्मूला इसका. तो सही बोला उन्होंने, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. द एक्सटर्नल कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द फर्म्स इनकम स्टेटमेंट और कंज्यूमर डिसीजन. ये एक्सटर्नल कॉस्ट मेंशन ही नहीं होता है, ठीक है. ये भी सही स्टेटमेंट है. ईच फर्म costs which are considered to be determining output would be only private cost or direct cost of production which does not include external. Each one cost determining output is only private cost and direct cost. External cost include नहीं होती, ये भी सही है. Production and consumer decisions are efficient only when the private goods are considered of the above. No, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है. First, second और third statement correct है. Government failure occurs when government failure occurs when government intervention is ineffective and produces fresh and more serious problems. All right, so guys, well done. So we are done with the second unit as well of public finance, and we will be getting through more units. All right, then public finance ka second unit we are done with. This is Pawan Gauka signing off. See you in the next video with new unit of and revision of the next unit. Till then, take care of yourself, study well, bye bye guys.